one thing, God is good to all those who trust Him. लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सबको अच्छा करता है जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है. Having God in our life is very easy. Everybody has gods in our lives. सब लोगों के पास परमेश्वर उनके जीवन में है, But they don't trust in the Lord. लेकिन वो लोग क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं? Even we can have God in our life. हमारे जीवन में भी परमेश्वर हो सकता है. We can say, I am a believer in हम Jesus कह सकते Christ. कि हाँ मैं विश्वासी हूँ यीशु पर. Whether we trust Him or not is a question we need to think about. लेकिन हम खुद को ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं यीशु पर सचमुच पूरी तरह से निर्भर हूँ और विश्वास करती हूँ? Sometimes even mature people in Jesus can find it difficult to trust Him. कई विश्वासी जो बहुत साल भी विश्वासी है, वो भी विश्वास करने के लिए उनको कठिन होता है. Sometimes we may go through very tough times that it can be difficult even for experienced mature believer to trust Him. कई ऐसे बहुत पुराने विश्वासी भी कठिन परिस्थिति से गुजरकर उनको विश्वास करना कठिन पड़ता है. Yes, but God is a good God. लेकिन परमेश्वर भला है. He will never pull us out of our limits. लेकिन परमेश्वर हमें खींचातान नहीं करता है. What we cannot bear, He will not give it to जो हम us. बर्दाश्त नहीं कर सकते वो हमें नहीं गुजरने देता है. Yes. At this time of this part of the year, we have just 5-6 days more to go. 2020. 2020 खत्म होने के लिए 5 दिन रह गए. Actually, 2020 was pictured as such an exciting year. From 2000 onwards, I know the whole thing, how it proved. 2020 में शुरुआत जनवरी में कितने लोगों ने कहा वाह 2020 बहुत अच्छा होगा. But it has shaken so much that many foundations have disappeared. लेकिन 2020 ऐसा साल था कि बहुत से बुनियादें हिल गई है. I'll tell you, even our foundations can shake. मैं सच बोलूं कि हमारी भी बुनियाद हिल सकती है. There is one thing which will never shake. लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं हिल सकता है. That is the kingdom of God. वो है परमेश्वर का राज्य. Kingdom of God is different. Religion is different. धर्म और परमेश्वर के राज्य में बहुत फर्क है. We all have religion. हम सब में धर्म है. But do we have the kingdom of God? लेकिन हम सब में क्या परमेश्वर का राज्य है या नहीं? Are we a part of the kingdom of God? क्या हम सब परमेश्वर के राज्य के निवासी हैं या नहीं? Yes. Kingdom of God will never shake. परमेश्वर का राज्य कभी टलता नहीं और हिलता नहीं. Yes. The world can shake. दुनिया हिल सकती है. Governments will shake. राजनीतियां हिल सकती है. सरकार हिल सकती है. The economic position will shake. आर्थिक समस्या हो सकती है. Education will shake. और विज्ञान हिल सकता है. Everything will shake. सब कुछ जो हिल सकता है. Kingdom of God will not shake. परमेश्वर का राज्य नहीं हिल सकता. So if you get up and walk into the kingdom of God and become a part of the kingdom of God, even you will not shake. तो यदि आप उठकर परमेश्वर के राज्य के निवासी बन सकते तो आप भी हिलेंगे नहीं. At this point, I am so thankful to God for what He has done to many of us in this year. मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने कैसे हमें संभाला है. Yes, God has taken care of all of us in a very marvelous way. परमेश्वर ने हम सबको संभाला है. Some of our people also had COVID, कई हमारे भी लोगों को कोविड था but nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ. Because the Bible says COVID cannot enter the lane in which you live. क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि महामारी कोविड या कोई भी महामारी तुम्हारे घर के गली में भी नहीं घुस सकता है. It is written like that. ऐसा लिखा है. It is very good to have a Bible with us.
अच्छा किताब बाइबल हमारे पास होना बहुत अच्छा है। Some Bibles look very expensive and beautiful. कई तो बाइबल इतने कीमत के हैं, But it is another thing to believe what is written in the Bible. It's for us. लेकिन मुख्य है कि क्या आप विश्वास करते हैं जो लिखा है अंदर, कि ये जो लिखा है मेरे लिए लिखा है। One day, somebody said, COVID can come to you also. किसी ने मुझे कहा एक बार कि हाँ कोविड आपको भी हो सकता है, It can come to anyone. किसी को भी आ सकता है। So then I read Psalm 91, फिर मैंने भजन 91 पढ़ा, verse 10. No evil shall be allowed to befall you, no plague is allowed to come near your house. 10वीं आयत में लिखा है कोई बुरी चीज तुम्हारे पास न आ सकती, कोई महामारी तुम्हारे घर के पास भी नहीं आ सकती। Yes. This word is true. ये वचन सच है। I am ready to believe this word rather than believe a TV news. मैं ये वचन पर विश्वास करूंगा, टीवी पर जो दिखाया है मैं उस पर नहीं करूंगा। We should put our faith in the written word of God. हमें हमारा विश्वास लिखा हुआ वचन पर रखना है, Not put our trust in people's opinions. और लोगों के कहने पर विश्वास नहीं करना है। Because people's opinions, they are absolutely wrong. क्योंकि लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, गलत में 100% गलत. 100% वो गलत कह रहे हैं। But what the Bible says is true to its elements. लेकिन वचन में जो लिखा है वो सत्य है और सत्य है। It requires a childlike faith on the word of God and to say and to trust this will happen in my life. और जैसे एक बच्चा विश्वास करता है वैसे हमें करना है कि जो लिखा है वो ही होगा और वो ही मैं कहूंगा। For any one of you who have trusted in the Lord and His word, this is a very, very good year. जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा। It is a beautiful year. 2020 is a remarkable year in our lives. 2020 हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर साल हो गया। Beautiful year. बहुत सुंदर साल, Where God has led us very beautifully every day. जहाँ हर दिन परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की। It is one of the best years in our lives. हमारे जीवन में बहुत ही एक सुंदर साल। And my heart is so grateful and so thankful at this time when I stand in front और of you. जैसे मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा दिल एकदम धन्यवाद से भरा है। Yes. We have to live a life of thankfulness. हमारा जीवन भी एक धन्यवाद का जीवन होना चाहिए। Sometimes we forget to be thankful. कई बार ना हम भूल जाते हैं धन्यवाद करने की। I will ask you a question. How many of you said thank you Jesus today? Don't put your hands up. आप हाथ मत ऊपर कीजिए, लेकिन मैं आप प्रश्न पूछूंगा, आज सुबह कितने लोगों ने धन्यवाद यीशु कहा? Okay. How many of you had thoughts of fear today? आज कितने लोगों को भयभीत विचार हुए हैं? How many of you had thoughts of anxiety today? कितने लोग आज चिंतित या परेशान थे? Many times we forget to be thankful and we are overtaken by what is happening all around us. कई बार हम भूल जाते हैं धन्यवाद करने के लिए और बाहरी परिस्थिति देखकर हम एकदम बिगड़ जाते हैं। I tell you, thankfulness is the greatest virtue you can ever have. मैं आपको सच कहूं कि धन्यवाद का दिल एक सबसे बड़ा दिल होता है। Gratefulness is the greatest attitude we can ever have. दूसरों को धन्यवाद करना है वो सबसे बड़ी नियत है। A grateful man or a thankful woman will have the whole of this world at his feet or her feet. जो व्यक्ति हमेशा धन्यवाद कहता है और जो दिल
धन्यवाद से उमड़ता है, पूरी दुनिया उसके पैरों के सामने आए। It is such a beautiful expression we can ever have in our ये life. सबसे बड़ी ऐसा स्वभाव, एक धन्यवादी दिल का स्वभाव। Many years before, my teacher gave me an example of a dog and a cow. मेरे एक टीचर ने मुझे एक उदाहरण, एक कुत्ता और एक गाय के बारे में दिया। Now, गाय is such a useful animal. ये जो गाय होती है ना, ये बहुत काम करती है। It gives milk and it is so protective. It blesses the whole house. दूध देती है, खेत पर काम करती है, कितना मदद होता है घराने को। But that guy is kept outside the house. Never it is allowed inside the house. लेकिन गाय को कहाँ बांधते हैं? आंगन में, घर के बाहर। But you know, there is a doggy inside that house which does nothing, no productivity. It is only a nuisance. लेकिन एक पालतू कुत्ता होता है ना, जो कोई काम का नहीं है, इधर उधर सब पैरों के बीच में आ जाता है। But when you come back home, it will jump and lick you like anything. लेकिन जब मालिक घर आता है, वो कुत्ता कूदता है, चाटता है, क्या क्या करता है। You know where that doggy sleeps? और वो कुत्ता पता है कहाँ सोता है? It sleeps under the bed of that boss. बस वो बहुत आलीशान बिछाना, वो जो तकिया के नीचे मालिक के पास सोता है। Some people even allow the dog to sleep in the bed with कई them. लोग वो तो कुत्ते को लेकर सोते हैं। Why? क्यों? Why such a favor on a dog? ऐसे इतनी करुणा कुत्ते पर क्यों है? Because it is so grateful. It is so thankful. क्योंकि कुत्ते का दिल देखो, इतना धन्यवादी, इतना खुश जब वो मालिक को देखता है। It is the most favored person in the whole family. पूरे घराने में सब कुत्ते के पीछे भागते हैं। Guy, that cow is so important. It is taking care of so many things in the house, but it is outside the house. गाय इतना कुछ करती है मदद, लेकिन वो आंगन में सोती है। See, same is the case for you and me. हमारा भी जीवन देखो ऐसा ही हो सकता है। When our lives are full of gratefulness and thankfulness, the whole world is at your feet. जब हमारा दिल एक धन्यवादी दिल हम बनाते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे पास आ जाती है। When you are finding fault and fighting and doing anything against the thankfulness, you are depromoted and kept out of the reach. जब हम किड़किड़ करते, कुड़कुड़ करते और नुक्ताचीनी करते, लोगों को उंगली दिखाते हैं, तो हम ही अकेले बन जाते हैं। So it is a very important thing that we need to develop thankfulness. तो हमारा दिल ऐसे बनाना चाहिए, धन्यवाद से भरा। So today I want to tell you or teach you how to develop thankfulness. तो आज का विषय है कि हमारा दिल, हम एक धन्यवादी दिल कैसे बना सकते हैं। Yes. See, thankfulness is a product of something else which is in us. एक धन्यवादी दिल कब होता है? जब कुछ दूसरा भी हमारे जीवन में हो जाता See, है। you can be thankful only when you commit yourself to God and Jesus Christ. जब हम परमेश्वर को हमारा जीवन अर्पित करते हैं, तभी हमारा जीवन में धन्यवाद It doesn't- स्वभाव आता है। It doesn't start with thanksgiving. It in fact starts with having a committed life to God. शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत अर्पण से होती है, जहाँ हम हमारे जीवन को यीशु के हाथों में अर्पण करते हैं। Everything begins with our commitment to God. हमने हमारा जीवन कितना अर्पण किया है प्रभु को, उसी से शुरुआत होती है। When you commit yourself to God, you will see His faithfulness. जब हम हमारे यीशु प्रभु को हमारे जीवन अर्पित करते हैं, फिर हम उसके वफादार पना हम देखते हैं। See, there are so many good people in this world. दुनिया में इतने भले लोग हैं, So many kind-hearted people in this world. दयालु बहुत लोग भी हैं, So many religious people in this world. इतने धार्मिक लोग भी हैं दुनिया में। There are people who are very, very religious. कई लोग इतने धार्मिक हैं, They do all the religious duties, सभी कुछ करते हैं पूजा पाठ, but they have not committed their lives to God. लेकिन उन्होंने खुद अपना जीवन यीशु परमेश्वर को अर्पण नहीं किया है। When it comes to their life,
they live it in the way they want. उनका जीवन वो उनकी इच्छा अनुसार जीते हैं। But when you commit your life to God, then God will work in your life. लेकिन जब आप अपना जीवन यीशु परमेश्वर को अर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। This Bible is a good book. ये किताब बाइबल एक बहुत अच्छी किताब है। It has two parts. इसमें दो प्रकार है, दो One is भाग है। Old Testament, एक one is New Testament. पुराना और नया नियम, Only two divisions. बस दो भाग है। If you read the Old Testament, it is full of very nice stories, पुराने नियम में बहुत कहानियां हैं, very interesting stories. बहुत अच्छे कहानियां हैं। In that stories, if you read, all those guys who committed their life to God, they saw the miracle of God in their lives. पुराने नियम में जो लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण किया, उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार देखा। Everybody who did not commit, they didn't see anything. वो गटर में गया. और जिन लोगों ने अर्पण नहीं किया, उनका कुछ नहीं हुआ। Everybody who committed their life to God, they saw miracles in their life. जिन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया, उन्होंने चमत्कार देखा। Others will never see the miracle of God. जिन्होंने अर्पण नहीं किया, उन्होंने चमत्कार नहीं देखा। I want to tell one truth at this point. मुझे कहना है एक बहुत बड़ी सच्चाई। The truth is this: God will never work in your life unless you commit your life to God. सच्चाई ये है कि आप यीशु में आपका जीवन अर्पण नहीं करते हो, तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता आपके जीवन में। Yes. When you don't commit, no miracle. अर्पण नहीं किए हुए जिंदगी में कोई चमत्कार ही नहीं हो सकता। When you commit, miracle. जब अर्पण करोगे तो चमत्कार देखोगे। There was a man called Joseph. जोसेफ नाम का एक व्यक्ति था। He committed his life to God. उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया था। You know where he landed? पता है वो कहाँ तक पहुँच गया? He became a slave overnight. वो तो एक गुलाम बन गया। He was very happy. Suddenly he became a slave. हाँ, वो बालपन में बहुत खुश था, अचानक वो एक गुलाम बन गया। From slave he landed in a prison. फिर गुलामी से वो कैद खाने में फंस गया। But he led a life of commitment. लेकिन फिर भी उसने अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया। There were temptations for him to do something against his commitment. हाँ, गलत काम करने के लिए भी उसको बहुत मौके थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा जीवन प्रभु को अर्पण है। He never obliged to that temptation. उसने गलत काम नहीं किया। He stood by his commitment. जो उसने निश्चय लिया प्रभु के पीछे जाने के लिए, उसने उसको वो हिल नहीं किया। He saw the miracle of God. और इस जोसेफ ने प्रभु का चमत्कार देखा। He became the prime minister overnight. वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। Now he has every reason to thank God. और वो सचमुच धन्यवाद करेगा प्रभु का। Your life which is not committed to Christ cannot experience or say thank you Jesus. जो जीवन प्रभु को अर्पण नहीं है, वो धन्यवाद नहीं कर सकता। How can you thank God? आप प्रभु को धन्यवाद कैसे कर सकते हो? How can you worship God when you don't have money? पैसा नहीं है जेब में, तो आराधना कैसे कर सकते हो? तुम्हारा घर में 5 लोग मर गया, तुम क्या क्या थैंक यू जीसस बोलेगा? तुम्हारा सभी गया, थैंक यू जीसस किधर से बोलेगा? Unless you commit your life to Jesus, you will never see any miracle in your life. अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दो, फिर ही आप चमत्कार देखोगे। He is capable of doing the impossible in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करेगा, असंभव को संभव करेगा। David is another guy who committed his life to God. डेविड भी का उदाहरण देखो, उसने प्रभु को अपना जीवन कमिट किया, अर्पण किया। One day he was in a life and death situation. एक बार ऐसे जीवन और मृत्यु के बीच में वो था। At that day, if that guy has not killed that Goliath, the Goliath should have killed him. यदि उस दिन गोलियत को दाऊद ने मारा नहीं था ना, तो दाऊद मर जाता। What happened? फिर क्या होता? A life of commitment.
एक ऐसा अर्पण किया हुआ saw the miracle of God. ये डेविड का जीवन में चमत्कार क्यों आया? क्योंकि उसने अपने जीवन प्रभु के हाथ में दिया था। You see everything. It's full of good story. That's why I like this Bible. इस बाइबल में प्रभु के चमत्कार की कहानी है। If you feel bored, some people feel bored, no? You should read the Old Testament. जब कुछ नहीं आप कर सकते तो आप प्रभु का वचन पढ़ो। हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोंकणी में पढ़ सकते हैं, अन्य भाषा में पढ़, गुजराती में पढ़ सकते हैं, चाइनीज में भी पढ़ सकते हैं, सभी में पढ़ सकते हैं। Stories of commitment. ऐसे कहानियां जहां लोगों ने अर्पण किया अपना जीवन। Stories of impossibilities. जहां ऐसे कहानियां जो असंभव को संभव किया गया। Stories of supernatural miracles. अलौकिक चमत्कार की कहानियां। You will never find such things anywhere in the world. ऐसे कहानियां आप कोई दूसरी किताब में नहीं मिल सकता। What a privilege to have this book and read this book. इतना बड़ा किताब हमारे हाथ में है। I'll tell you, if your life is committed to Jesus, you will see the miracles of यदि God. आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे आपने निश्चय किया और अर्पण किया, आपके जीवन में चमत्कार आप देखोगे। I heard about a story. I think I need to say it here. मुझे एक कहानी याद आई है, मैं आपको बताऊंगा। There was a married couple. एक ऐसे दंपति थी, मियाँ बीबी। Every time the wife conceives, it automatically aborts, the child automatically aborts and just flows out of the body. और हर बार पत्नी गर्भवती होती है तो बच्चा गिर जाता था पेट से। Automatic, nothing just doesn't stay there. वो बच्चा कोख में रहता था ही नहीं, गर्भ में नहीं रहता था। And the seventh abortion, the uterus also came out. और सातवीं जब ऐसा गर्भवती हुई तब बीबी बच्चे के साथ पूरी जो वो बच्चे जन्म दे की पेटी भी बाहर आई। She has no uterus. अभी उसको वो यूट्रस भी नहीं है। But this couple started to pray to Jesus Christ, Lord, give us a baby. लेकिन दोनों ने साथ मिलकर वो प्रार्थना करने लगे। Without uterus, how can a woman प्रभु conceive? हमें बच्चा दो। अभी गर्भ की वो जो यूट्रस नहीं है तो बच्चा कैसा हो सकता? But they both had faith लेकिन in the दोनों God who can create a baby inside and just bring the baby out. लेकिन दोनों में विश्वास था कि प्रभु तो कर सकता है ये असंभव चीज को। After some time, she gave birth to a twin baby girls. कई महीनों के बाद उसने जुड़वों को जन्म दिया। And that man called his wife. She was already carrying. She was I think 8th or 9th month. She was carrying with the second baby. और जब वो आदमी ने उसको बुलाया तो वो गर्भवती 9 महीने थी। God is a God of impossible things. परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। God is a God of impossible things. परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। But you know what? Why God is waiting? पता है प्रभु क्यों रुका हुआ है? He wants you to commit yourself to Him. प्रभु आपके लिए रुका है। क्या आप प्रभु को निश्चय करेंगे अर्पण करने के लिए आपका जीवन? I want to challenge every one of you. मैं सबको चुनौती देना चाहता हूँ। You commit your life to Jesus. आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन अर्पण कर दो। Don't look to the right. Don't wonder what's going to happen. He is the person who sent you in this world. यहाँ वहाँ मत देखो, घबराओ मत, प्रभु घबराओ नहीं। प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है। We put application, then we came here. क्या आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप दुनिया में आए? No. नहीं। He sent you. He decided to send you in the world. प्रभु का निश्चय था कि आप इस दुनिया में आए। You are here because of Him. आप यहाँ क्यों हैं? उसके कारण। The life you are living is what He has designed for you. जो जिंदगी आप जी रहे हो प्रभु का निश्चय था, प्रभु ने आपको भेजा है। Why are you stressed? आप इतने चिंतित क्यों है, परेशान Why are you so afraid? क्यों डरे हुए हैं? If you commit your life to Christ, not even one evil will happen to you. यदि आप आपका जीवन प्रभु को अर्पण करोगे, कोई बुराई आपके पास नहीं आएगी। On your left hand side, 1,000 people will die. On your right hand side, 10,000 people will die. But you will walk like that as if nothing happened. 1000 एक बाजू गिरेंगे, 10,000 एक बाजू मरेंगे आपके, लेकिन आपको कुछ महामारी छुएगी नहीं।
All these turbulations and tribulations is not for you and me. ये It's not for the kingdom of ये God. परेशानी, ये जो कुछ हो रहा है परेशानी, ये आपके लिए नहीं है, राज्य और परमेश्वर के लिए नहीं है। Jesus said a beautiful verse. यीशु मसीह ने एक कहा, In the world there is tribulation. ऐसा था कि दुनिया में गड़बड़ और परेशानी होगी। The world is full of tribulations. दुनिया में बहुत परेशानी होगी, But I overcome the world. लेकिन मैंने, यीशु कहता है कि मैंने दुनिया को, उस दुनिया के ऊपर मैंने विजय पाई है। Means I have overcome all the tribulations also, which is मतलब inside that world. परेशानी के ऊपर मैंने विजय पाया है। Huh? What a truth. ये What a truth. बड़ी सच्चाई है। World will have tribulation. हाँ, दुनिया में तो परेशानी होगी, If you क्लेश are- होगा। If you are inside the world, you will also be tribulation. यदि आप दुनियादारी में फंस जाओगे तो आपको भी क्लेश होगा। Huh? They will fry everybody, they will fry you also. दुनिया आपको सताएगी, दुनिया दूसरों को भी सताएगी, आपको भी। Jesus said, I overcome the world. लेकिन यीशु ने कहा, मैंने दुनिया पर मैंने विजय पाया है। So you stand with Jesus and you say, I also overcome the world. तो आप यीशु के साथ खड़े हो और कहो, मैंने भी दुनिया पर विजय पाया। Yes, I like to quote what Pandita Ramabai said many 100 years before. पंडित रमाबाई ने 100 साल पहले ये और एक कहावत कही। I love this what she said. Your life fully committed to Christ एक जीवन जो पूर्ण रीति से प्रभु को अर्पण किया हुआ है, has nothing to lose, कुछ खोएगा नहीं, nothing to fear, कुछ डरेगा नहीं nothing to regret. और पश्चाताप भी नहीं करेगा। मतलब कि अरे मैंने ये नहीं किया जिंदगी में, ऐसा। Your life fully committed to Christ. ऐसा जीवन जो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अर्पित है। Not a life who is a member of a church. ऐसा नहीं कि हाँ मैं एक चर्च का मेंबर हूँ, उसका मतलब मैंने अर्पण किया हुआ, ऐसा नहीं। Not a life filled with the Holy Spirit. ऐसा ही सिर्फ पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ऐसा नहीं। A life which is fully committed to Christ. 100% अर्पित हुआ जीवन यीशु के हाथ में। Has nothing to lose. ऐसे जिंदगी में कोई खोने की जरूरत ही नहीं है, Has nothing to fear. डरने की जरूरत ही नहीं है, There's nothing to regret. और रिग्रेट होना, पश्चाताप करना कुछ नहीं है। मतलब Nothing to fight. Nothing to argue. Nothing to gossip. Nothing. It is a life of bliss जो and जीवन happiness. यीशु को अर्पण हुआ है, वो नहीं झगड़ेगा किसी से, नहीं आर्ग्यू करेगा, सिर्फ आशीष आशीष आशीष। Everything depends upon the commitment you have. लेकिन पहला अर्पण करो आपकी जिंदगी। When you commit, then you experience God. जब आपकी जिंदगी यीशु पर अर्पित है तो ही ये आशीष का अनुभव होगा। Then comes thankfulness. और फिर एक धन्यवाद से भरा हुआ हृदय होगा। At the year end, you will have lot of things to thank. साल के अंत में आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, You are blessed in every way possible. क्योंकि हर एक जगह में आपको आशीष ही मिला है। Yes. When you thank God, your whole temperament changes. जब हम यीशु मसीह को धन्यवाद कहते हैं, आपका पूरा चेहरा बदल देता है। Our face changes. हमारा चेहरा खिल उठता है, Oh, our outlook changes. सब कुछ बदलता है। A man who is so thankful is so happy. एक व्यक्ति जिसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है ना, बहुत खुश दिखेगा। Sometimes things may not be going on well around him, but he is so joyful on the हो inside. सकता है कि हाँ परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका हृदय ना बहुत खुश है, क्योंकि वो धन्यवाद से भरा हुआ हृदय है। A man who is full of thankfulness is not bitter or angry about anything, एक धन्यवादित हृदय कुड़कुड़ नहीं करता है, क्रोधित नहीं होता है, because it begins to enjoy the grace of God. क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आने लगता है। See, somewhere I think we need to understand what grace is. अनुग्रह क्या है, हमें ये समझना है। Yes. Mercy, we all understand. We all see. करुणा
करुणा और दया हम सब समझते हैं। I'll give you an example. If a boy gets 30 marks, एक उदाहरण, the teacher have mercy on that boy and give him 5 marks एग्जाम में and एक make लड़की, him pass. एग्जाम में एक लड़का 30 मार्क लेता है, टीचर को दया आती है, 5 मार्क लेता है, उसको देती है और पास करवाती है। Mercy is good, no? दया अच्छा है ना? दया, Some students are praying for mercy. कई विद्यार्थी दया के लिए बहुत रोते हैं। Mercy is something which we see all over this world. दया और करुणा हम सब जगह देखते हैं। When I go on the road, some old people are begging. जब मैं रास्ते पर चलता, कई बूढ़े लोग भीख मांगते हैं। They look like my grandmother. मुझे ऐसा लगता है ये मेरी दादी के जैसे, नानी के जैसे दिखती है। So I feel so bad. My heart is full of mercy. I give them some तो money. मेरे दिल में बहुत दया होता है और मैं पैसा देता हूँ। But you know what is grace? लेकिन अनुग्रह क्या है? Grace is what we enjoy. अनुग्रह हमारे लिए प्रभु ने दिया, जिसमें हम आराम करते हैं। Grace is you did not even appear for exam. He gave you school first. अनुग्रह ऐसा है कि आपने एग्जाम के लिए बैठे ही नहीं, लेकिन टीचर ने आपको पहला रैंक दिया। How is it? वो कैसा है? तुम्हारा बाजू वाला हाँ बोलेगा क्या? Please understand, grace is actually injustice. अनुग्रह एक जैसे हो ना, इनजस्टिस हो मतलब अन्याय है। आप बैठे ही नहीं एग्जाम पर और आपको पहला रैंक। Today I tell you, we are saved by grace. आज हमारा उद्धार पता है कैसे हुआ? अनुग्रह से। Some people ask me, Father, वो नरक में जाएगा क्या? वो स्वर्ग में जाएगा क्या? वो मुझे बोलता है, मुझे पूछता है। मैं उसको बोलता हूँ, मैं नरक में जाएगा क्या? स्वर्ग में? यही क्वेश्चन मार्क में है। Today we want that fellow will go to hell or this fellow will, Hindu will go to hell or Muslim. Hey, please understand, by grace we are saved. आज हम पंचायत करते हैं, ये नरक में जाएगा या वो स्वर्ग में जाएगा, ये कितना पाप किया। हमें सब समझना है कि हमारा उद्धार सिर्फ अनुग्रह से हुआ है। He is so gracious. He cleansed us with his own blood. यीशु मसीह परमेश्वर का दिल देखो, इतना अनुग्रह और अनुग्रह से भरा। उसके लहू से उसने मेरे पापी दिल को साफ और पवित्र बनाया। That is the basis of thankfulness. इसलिए ये जब बुनियाद हमारे जीवन में है ना, तो हम धन्यवाद कर सकते हैं। Today, if you and I we understand what grace is, I tell you, we will be more thankful. यदि आप ये समझ पाते हो ना कि अनुग्रह का मतलब क्या है, आपके मुंह पर सिर्फ धन्यवाद प्रभु के लिए निकलेगा। I tell you, there will never be a grumbling or bitterness or fault finding anywhere in our dictionary. आपके ओठों से ये जो ग्रम्बलिंग और कुड़कुड़ और क्रोधी और उंगली दिखाना वो नहीं होगा, सिर्फ धन्यवाद होगा। I tell you, it's a privilege to encounter God through this Bible. इतनी बड़ी बात है ये अनुग्रह समझने के लिए। It's a privilege to know God. एक इतनी बड़ी बात है कि इसी वचन से हम प्रभु को जान सकते हैं। It is privilege that we are living at the end of this year with a thankful heart. इस बहुत बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं ये 2020 के अंत तक और हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। We don't have any credit to ourselves. हमने कुछ नहीं किया जिंदा रहने के लिए। I tell you, when you come to this level, I tell you, you will thank everyone around you. यदि आप ये पहचानते हो ना, आपके चारों ओर जो भी लोग हैं ना, आप उनको भी धन्यवाद बोलोगे। You will not be just thanking God. सिर्फ प्रभु को धन्यवाद नहीं कहोगे, You will thank everyone. आप सब लोगों को धन्यवाद कहोगे। Paul was a man who understood what grace of God is. पौलुस, अपोस्टल पॉल ये समझ गया कि अनुग्रह का सच्चा मतलब क्या है। He was not just thanking God. पौलुस ने सिर्फ प्रभु को धन्यवाद नहीं कहा, He was all thanking everybody around him. नाम ले लेकर पौलुस ने सबको धन्यवाद की। If you have your Bibles, can you turn with me to Ephesians? एफिसस की किताब को आप देखिए, Chapter 1. चैप्टर 1, Ephesians chapter 1. पहला अध्याय।
verse 16. 16 वचन। Let us read what the Bible says. Ephesians chapter 1 verse 16, it says, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. देखिए पौलुस ने क्या कहा कि मैं तेरे नाम लेकर प्रभु को तेरे लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रार्थना में। He was not just thanking God, he was thanking everybody. वो सिर्फ प्रभु को नहीं धन्यवाद कह रहा था, वो लोगों के लिए धन्यवाद कह रहा था। Then he wrote another letter to Colossian church. फिर कोलोसियंस को लिए भी उसने एक खत लिखा। Colossians chapter 1 verse 3. 3 We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. देखिए पौलुस ने क्या कहा कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लिए, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ तेरे लिए। Then he wrote a letter to Thessalonians. फिर थेसलोनियन के लोगों के लिए उसने एक पत्र लिखा। Thessalonians 1 Thessalonians chapter 1 verse 2. एक थेसलोनियन और पहला अध्याय वचन 2। We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our वो prayers. क्या कह रहा है कि आप लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारे नाम ले लेकर धन्यवाद देता हूँ। Then he wrote another letter to Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you from the beginning to be saved through sanctification with the Spirit and belief in the truth. तो दूसरे थेसलोनियंस में वापस पौल कह रहा है कि भाइयों और बहनों मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु को कि हम सबको आत्मा में एक बनाया है और हम धन्यवाद करता है। He is not only thanking God, he is thanking everyone. देखो पौल सिर्फ प्रभु की धन्यवाद नहीं करता है, लेकिन एक दूसरों के लिए धन्यवाद कहता है। Your life should be committed to him and him only. आपका जीवन सिर्फ यीशु को आप अर्पित कर दो और सिर्फ यीशु। When you commit yourself to him, there is nothing to fear. ये अर्पण करना क्या निश्चय जब आप करते हो ना, कुछ भयभीत होने की जरूरत नहीं है। There is nothing to fear. भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। Pandita Ramabai was a single woman, you know, against millions of people. She stood so strong. ऐसी समाज सेवक स्त्री पंडिता रमाबाई अकेली थी, लेकिन अकेली वो खड़ी रही। कितने लोग उसके विरुद्ध आए, लेकिन वो खड़ी रही। If you commit yourself to Jesus, there is nothing to fear. क्योंकि उसने अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया, इसलिए वो डरी नहीं। There is nothing to fear. वो भयभीत नहीं हुई पंडिता रमाबाई। There is nothing to lose. और कुछ खोने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं। If you commit your life to Christ, there is nothing to lose. You will never lose anything. आप कुछ नहीं खो पाओगे। Sometimes you lose something. God tells me, it is not yours, let it go. कभी-कभी जब मैं कुछ खोता हूँ, तो प्रभु मुझे कहता है, बस वो तेरा नहीं था, जाने दो उसको। You will never lose anything. There is nothing to lose. आप कुछ नहीं खोओगे। There is nothing to regret. और ऐसी भी चीज नहीं होगी कि अरे दुख लगा, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो भी नहीं होगा। You should agree with me. I am living with young people for the past almost from 1984. I am living with young people. 30-40 साल में मैं जवानों के साथ रहता हूँ। Yes, I am in their joys and in their sorrows. और मैंने देखा जवान लोग जब खुश होते हैं, जब दुखी होते हैं। I have seen very, very poor girls, poor boys becoming millionaires. मैंने ऐसे भी देखे बहुत गरीब लड़के और लड़की अभी वो करोड़पति है। I'm not joking. ये सच है। See, there was my student, you know. He was admitted in the hospital. He didn't have money to 1,000 rupees to pay the doctor. Because of that, the doctor was not leaving him. मेरा एक विद्यार्थी था, उसको 1,000 रुपए भी नहीं था हॉस्पिटल से डॉक्टर को देने के लिए, इतना बीमार था और गरीब था। Now today he came to Jesus Christ. Today I tell you, he owns a huge industry. फिर वो प्रभु में आया। आज वो एक बड़ा इंडस्ट्री का
मालिक है। He's telling me, sir, this BMW is like toys for me. वो कह रहा है कि सर ये BMW गाड़ी ना मेरे लिए एक खिलौना है। He has many of that things in his house. I have seen such things. मैंने ये देखा, वो करोड़पति है आज। What I want to say is, there are many boys and girls, they end in regret. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई जवान लोग बहुत अपने जीवन में वो पछताते हैं जीवन का। Yes. They end in regret. वो कहते कि अरे मेरा जीवन कैसा बन गया। You know why? क्यों पता है? Because they don't commit their life to Jesus. क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अर्पण नहीं किया। When Jesus is knocking your door, you just said, shut up and get lost. I have my life. I tell you, it is an ending in the life of regret. जब यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता है, तो कई लोग कहते नहीं नहीं डिस्टर्ब मत करो और दरवाजा बंद करते हैं। यही लोग की जिंदगी में दुख होगा और वो पश्चाताप करेंगे। There cannot be thankfulness. वो ऐसे लोग कैसे धन्यवादित हो सकते? Everything begins when you commit your life to God. जब आप प्रभु यीशु मसीह को 100% आपका जीवन दोगे ना, फिर आप देखिए। I'll tell you one thing. I'll tell you a good news. मुझे आपको एक अच्छी बात कहनी है। Everybody has bad news. चारों ओर बहुत बुरी बात हो रही है। I'll give you a good news. मुझे आपको एक अच्छी न्यूज़ देना है। Yeah. 2021 is going to be a better year than 2020. 2020 से बहुत अच्छा साल होने वाला है। I tell you this. 2021 is going to be a very good year for those people who commit themselves to Jesus Christ. जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन अर्पण किया है, उनके लिए 2021 एक बहुत अच्छा साल होने वाला है। So commit your life तो अर्पण करो बाबा आपका to जीवन God now. आज अभी यीशु मसीह के हाथों में जीवन दो। You will see the miraculous coming upon और you. आप चमत्कार देखोगे आप पर। Impossible things will happen. असंभव चीज प्रभु देगा आपको। Money will flow. पैसा आएगा, बहेगा आपके पास। Health will increase. आपका स्वास्थ्य और अच्छा बढ़ेगा। There is no problem with money. पैसों के बारे में कुछ परेशानी नहीं होगी। God will bless you. प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। God has special blessings for His special people. एक स्पेशल आशीष है स्पेशल लोगों के। Who are the special people? स्पेशल लोग कौन है? The Davids are special. डेविड के जैसे जो होता है ना, वो स्पेशल They होते हैं। commit their lives to God. डेविड ने अपना जीवन अर्पण किया, आप भी ऐसा They are special not looking बनना। at the right, looking at the left. They are looking straight to God. ऐसे डेविड के जैसे लोग यहाँ वहाँ नहीं देखते, सिर्फ प्रभु के पास देखते हैं। God has the best life for every one of you. ऐसे ही लोगों को बहुत अच्छा जिंदगी होगा। May the Lord bless you. प्रभु आप सब पर आशीष लाए।